اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. سٹارز آف پی آئی ڈی کے اس ایپیسوڈ میں فہد اسد کی جانب سے السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ ایوننگ. بینگ اے پاکستانی از انف ریزن فار می ٹو بی پراؤڈ آف اٹ، اور یقیناً آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا. ناظرین، اس عید پہ میری طرح یقیناً آپ بھی اداس ہوں گے. شاید ہماری زندگی کی یہ پہلی عید ہے کہ ہم نہ تو عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ اپنی ثقافت اور اسلامی روایات کے حساب سے آپس میں عید مل رہے ہیں، نہ گلے مل رہے ہیں. یقیناً ہم لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک اداسی کی بات بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب پر امید بھی ہیں اور اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ ہماری آنے والی عید ہمیشہ کی طرح خوشیوں کے ساتھ آئے اور ہم اسی جوش و جذبے کے ساتھ آنے والی عید منائیں. میں سٹارز آف پی آئی ڈی کا یہ ایپیسوڈ ایسے تمام بہن بھائیوں کے، ایسے تمام فیملیز کے نام کرتا ہوں جو اپنے گھروں میں محیط ہیں اور عید کو اپنے گھر میں ہی منا رہے ہیں، قانون کی پابندی بھی کر رہے ہیں، اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے پیاروں کا بھی. پی آئی ڈی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. جی ناظرین، ہمارے آج کے اسٹار ایک بہترین مقرر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں. صوفیزم پہ نالج کی وجہ سے ایک اعلیٰ پیمانے کے اسلامک اسکالر بھی ہیں. ہماری یہ خوش نصیبی ہے، انہوں نے ہمیں رمضان شریف میں ٹائم دیا اور آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے ملتے ہیں جناب محترم سید بلال قطب صاحب سے. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو سر اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے بیزی اسکیجول کے باوجود ہمیں عزت افزائی دی. بہت شکریہ. اچھا سر، آپ کی اجازت سے میں کوشش کروں گا کہ دنیاوی پہلو کے کچھ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں. اچھا حضرت، میرے جیسے عام انسان کی سمجھ کے لیے ذرا شریعت کو ایکسپلین کریں کہ شریعت کیا ہے. خداوندی اور احادیث کا ماننا ہی شریعت ہے یا اس میں کچھ اور بائنڈنگز بھی ہیں؟ پہلے تو میری غیر حاضری کی میں معذرت کرتا ہوں تمام دوستوں سے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے آن بورڈ لیا. اور تیسری بات یہ کہ جو بھی علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اللہ یہ فرما سکتے تھے کہ جو زیادہ حج کرے گا میں اس کو زیادہ رتبہ دوں گا، جو زیادہ نمازی ہوگا، جس کی داڑھی لمبی ہوگی. اللہ یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے، اللہ جو چاہتے کہتے. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے جب لوگوں کے اوپر لوگوں کو درجہ دیا تو اللہ نے کہا میں نے ہر علم والے پر علم والا رکھا. سو جو درجات انسان کو دیے وہ علم کے اوپر دیے، اور نبی محترم جو ہیں وہ سب سے بڑے استاد اور علم دینے والے. اب دیکھیے، جب ہم لفظ شریعت استعمال کرتے ہیں، لفظ فقہ استعمال کرتے ہیں، میرے خیال میں بہت ہی غلط پرسیپشنز ہیں ہماری. اس کے اوپر میں جو راوی کر رہا ہوں آپ کو، وہ تفسیر ابن کثیر ہے. آپ نے بڑی اچھی تفسیر فرمائی. کہا کہ جو شریعت ہوتی ہے یہ شاہراہ اس کا بنیادی لفظ ہے. شاہراہ کبھی بھی کسی چھوٹی سڑک کو نہیں کہہ سکتے، کسی بڑی سڑک کو کہتے ہیں شاہراہ.
ऐसी सड़क जो बहुत चौड़ी हो, इससे मुराद पता है क्या उन्होंने दी? उन्होंने कहा रेंज होती है, 0 to 10 की स्केल पे हर चीज की रेंज होती है। हर शय जो है वो गुनाह कबीरा नहीं हो सकता, हर शय जो है वो बिद्दत नहीं हो सकती, रेंज होती है। और फिर अल्लाह ने जो हिसाब लेना है वो नीयतों के ऊपर लेना है, ये सब रेंज की बात है। कहा ये ऐसा रास्ता है जो खुला रास्ता हो। अब इसके अंदर ब्रैकेट डाल के इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये ऐसा रास्ता है जो खुला हो, इसका जो किबला है वो तय्युन होना चाहिए कि ये शाहराह जो है ये अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ जा रही है। लेकिन इसके अंदर जो मुसाफिर हो, उसके पास जो लगेज हो, जो सामान हो, जो बोझ हो, वो कम तरीन हो, वरना वो शाहराह के रास्ते का मुसाफिर नहीं है। इसीलिए इस बात को इस हदीस से जोड़ के देखिए, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जो पहाड़ लेके आएगा अमाल के, और वो शख्स जिसके पास एक अमल भी नहीं होगा और वो दोज़ख का इंतजार कर रहा होगा, अल्लाह को वो कहेगा कि इसने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया था, उसको आधा पहाड़ दिया जाएगा। ये मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूँ हदीस। लोग कहेंगे मैंने इसको सलाम किया, लोग कहेंगे मैंने इसकी तरफ देखा, इसने देखा नहीं, लोग कहेंगे इसने जाते हुए अपने कपड़ों की खरखराहट, जैसे कि हमें अपने लिबास के ऊपर तकब्बुर होता है, वो दिखाया। वो सब बातें करते करते उसके सब पहाड़ लोगों की तरफ जो अजर और सवाब के थे, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, उनकी तरफ चले जाएंगे। फिर जो लोग शिकायत करेंगे, अल्लाह कहेगा अच्छा तुम अपने अब गुनाहों का बोझ इस शख्स को दो। और आखिर के अंदर फरिश्ते जो हैं इस आदमी को जो कि अमाल के पहाड़ों के साथ आया है, उसको दोज़ख में भेज रहे होंगे, और वो लोग जो कि गुनाहों के साथ आए थे उनको जन्नत में भेज रहे होंगे। ये हदीस कुदसी है, और इसको रावी करने वाले जय्यद सहाबा है, जय्यद सहाबा है। ये वो शरीयत है जिसका तस्करा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप मुझे बताइए, नबी के दौर में कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ नबी ने अपना अखलाक ना पेश किया, बल्कि मैं और आप तो वो अखलाक पेश कर नहीं सकते। ये सब सुन्नतें हैं। मेरे नबी ने कभी किसी की तरफ चेहरा मोड़ के बात नहीं की, जब भी मुड़े पूरे के पूरे अपने आप को, अपना पूरा जिस्म उस तरफ किया। ये वो अखलाक, ये वो सीरत और ये वो सुन्नत है जिसको जब जमा करें और इस अखलाकियात को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करें, तो अल्लाह ने इसको एक रास्ता करार दिया है जो अल्टीमेटली आपको खुदा की तरफ लेके जाता है। यही रास्ता है जो अल्लाह की तरफ लेके जाता है। इबादतें करना मैं नहीं कह रहा नहीं करनी है, लेकिन अल्लाह ने जो रास्ता बताया है उसमें मुसाफिर के पास सामान मुख्तसर होगा। अच्छा सर, तरीकत और शरीयत ये क्या लाजिम और मलजूम है? और अगर तरीकत को हम शरीयत की डेफिनेशन में समझना चाहें तो ये क्या है सर? तरीकत जो होती है शरीयत की नीयत होती है, बस इतना ही है। जब भी आप शरीयत को, किसी भी शरीयत को अटेम्प्ट करेंगे, जिस भी शाहराह को अटेम्प्ट करेंगे या उसके ऊपर आप सफर करेंगे, तो आपकी नीयत जो है वही तरीकत होती है आपकी। यानी जो आप अपने शेख की नीयत कर लें तो आपकी, यानी जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है हमारी, उस शाहराह पे चलने की जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है उसको हम तरीकत कह सकते हैं सर? नहीं, आपकी उस शाहराह पे चलने की जो नीयत है वो आपकी तरीकत है जी। अच्छा सर, अभी आपने तकवा की बात की थी, तो फतवा और तकवा इनमें क्या फर्क है सर? देखिए, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, हालांकि ये मजाक की बात है। दोनों चीजें जो है ये इंतहाई मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे दोनों की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। हजरत अब उमर खत्ताब का जमाना था, और आपने ये वहां पे ऐलान किया कि जो भी शख्स जो है वो इल्म दीन का रखता है वो उसके ऊपर हुक्म जारी कर सकता है। इस हुक्म को जारी करने को, यानी कि पैराडाइम ऑफ रिलीजन के अंदर रहते हुए हुक्म जारी करने को फतवा कहते हैं। लेकिन उसके बाद आपने एक और जुमला कहा कि जिस जगह और जिस मस्जिद में इमाम अली करमल्लाह मौजूद हो वहां फतवा मत देना। यहाँ यानी कि अपने पूरे इल्म के जोर की बुनियाद पे भी वहां पे राय ना देना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा, तुम्हें हकीर कर देगा, क्योंकि जो ज्यादा जानता है वो दे सकता है। बात को सुनने के बाद, इस मुकदमे को सुनने के बाद, मैं अपने इल्म की बुनियाद पे जो सही समझ सकती है, इसमें मेरी लैक ऑफ कुछ आ सकते हैं, लेकिन मैं द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी जो है उस बात को सुन के अपनी नीयत में एक ऐसा फैसला सुनाऊं जो कि हिकमत का हो या ना हो, लेकिन मेरी अकल के मुताबिक वो दीन इस्लाम के पैराडाइम और शेडो के अंदर हो। अब यहाँ पे अल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस फरमाई, और हदीस कुदसी है। खुदा कहता है तुम्हारे पास एक फैसला आता है करने के लिए, और तुम अपने पूरे इल्म जो उस वक्त एज ऑफ देन तुम्हारे पास इल्म है उसकी बुनियाद पे
اور بالکل अच्छी नीयत के बुनियाद पे तुम एक फैसला करते हो। और अब अगला जुमला सुनिए, खुदा कहता है वो फैसला गलत हो, वो फैसला गलत हो, खुदा कहते हैं मेरी तरफ से तुम्हें अजर है। अल्लाह गलत फैसले पे अजर दे रहा है, ये है फतवा। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर तुमने पूरे इल्म के जोर पे और पूरी ईमानदारी से बात कही और वो सही हुई तो मेरी तरफ से दोहरा अजर है। अल्लाह का जो फतवा है, यानी कि अल्लाह का जो डिसीजन है, वो आपकी नीयत पे, आपके इल्म पे और आपकी उस वक्त की जो एग्जीक्यूशन है उस पे डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर नहीं। जो तकवा है ये बच के चलने का नाम है, जिसको आजिज़ी से जोड़ा जा सकता है। हजरत उमर खत्ताब ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा था कि तकवा क्या है, तो आपने कहा एक पगडंडी कभी चौड़ी नहीं होती और पगडंडी कभी सीधी नहीं होती। आप इस रास्ते पे, पगडंडी के रास्ते पे चलें, आपके एक तरफ खाई हो गहराई और एक तरफ कांटेदार गाड़ियां हो और आपका लिबास खुला हो, इस लिबास को जिस्म पे लपेट के जाहिर है डर भी लगेगा और कांटे भी चुभेंगे, लेकिन बचते बचाते जो चलने का तरीका है कि तुम अपने दिल को अपने सीने से निकालो, उसको एक तशले में, एक बर्तन में रखो और अपने शहर और बाजार के जाके चौराहे में रख दो और तुम्हें किसी किस्म की शर्म और हया किसी से ना आए, तुम इतने साफ हो। ये तकवा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सर, हम आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं, वो जैसे एक तो कानून कुदरत होता है, एक कानून फितरत की टर्मिनोलॉजी आजकल यूज हो रही है। तो ये कानून फितरत क्या है सर? इसके मुतालिक हमें जरा समझाएं सर। देखिए, ये दोनों हकीकतें हैं। कानून कुदरत जो है इसको आप शरीयत कह लीजिए। अल्लाह अपने कानून को बदल देता है, अल्लाह अपने कानून को बदल देता है। अगर अल्लाह अपने कानून पे सख्ती के साथ गामजन हो तो फिर मुझ जैसे जाहिल लोग जो है वो कहेंगे कि अल्लाह ने तो सब कुछ कर दिया। इसके ऊपर एक थीसिस जो यूरोप और अमेरिका ने और इंग्लैंड ने निकाला था 10-12 साल पहले, वो था कि गॉड इज डेड, माज़अल्लाह, इसलिए क्योंकि खुदा सब कुछ कर चुका है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। खुदा अपने बनाए हुए हर फैसले को, हर असूल को बदलने की सलाहियत रखता है, इसलिए उसने एक कॉरिडोर रखा है जो कि बैकडोर कॉरिडोर है, और इस बैकडोर कॉरिडोर का नाम है दुआ। ये दुआ का जो अमल है ये अल्लाह की तकमील करता है कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। लेकिन अल्लाह ने जो दुनिया के लिए असूल बनाए, जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के कानून बनाए, उनके अंदर अल्लाह किसी को छूट नहीं देता। इसलिए जब दुनिया के हकायक और दुनिया के असूल या इंसानियत के कवानीन की आप पामाली करते हैं तो आपको उसका अजर और सवाब जो है वो दुनिया में जिल्लत, रसवाई या कामयाबी से मिल सकता है। इसकी तौबा कोई चीज नहीं होती। लेकिन खुदा के कानून को जब आप तोड़ते हैं तो आप तौबा करते हैं और नए नहाए ताजा दम हो जाते हैं। अच्छा सर, हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि ये हमारी किस्मत में लिखा था, और उसके बाद फिर हमने कुदरत का भी लफ्ज सुना है। तो किस्मत और कुदरत में क्या फर्क है सर? और एक मतलब हम हमेशा से ये सुनते हैं कि ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, तो ये कुदरत और किस्मत को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर? देखिए, अगर किसी ने मेडिकल साइंस ना पढ़ी हो तो आप उससे जाके एंटीबायोटिक नहीं खरीदते। अगर किसी ने इंजीनियरिंग ना की हो तो आप अपनी घर की छत उससे डिजाइन नहीं करवाएंगे। अगर किसी वकील ने कानून नहीं पढ़ा तो आप उसको वकील नहीं करेंगे। ये बदकिस्मती जो है ना, ये सिर्फ दीन की, मजहब की है कि लोगों को लफ्ज का पता चल जाए तो वो उसके ऊपर फितना जहालत नहीं, फितना पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि जनाब ये क्या। ये मामला जो है ना ये आम लोगों के लिए है नहीं, इसलिए नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूं, जो कंपैरेटिव रिलीजन को आप स्टडी करते हैं तो इसकी तकमील 6 एलिमेंट्स के साथ होती है। मिसाल के तौर पे पहला एलिमेंट जो है वो एक लीडरशिप है जो प्रॉफिटहुड के साथ आती है। फिर उसकी एक टेक्स्ट होती है जो कुरान की या भगवत गीता की सूरत में या किसी और सूरत में आती है। फिर उसकी एक सेकेंडरी टेक्स्ट होती है जो कि सीरत के तौर पे आती है। फिर उस मजहब के अंदर, मजहब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर उसके अंदर मंदिर, मस्जिद ना हो। आज मस्जिदें खत्म करते हैं, इस्लाम का पैराडाइम खत्म हो जाएगा। फिर उसके अंदर डॉगमा होता है, यानी कि हम देखे के ऊपर यकीन करना होता है, जिसको कि हम मिसाल के तौर पे फरिश्तों के ऊपर यकीन करना ईमान का हिस्सा है। लेकिन यहां तक इन 5 चीजों के अंदर तमाम मज़ाहिब जो हैं ये इकट्ठे हैं। इसको हम कहते हैं कॉमनैलिटीज ऑफ रिलीजन है। लेकिन एक छठी चीज जो अल्लाह ने हमें दी और हम इसी के ऊपर ना आ सकने की वजह से जाहिल मुतलक अल्हम्दुलिल्लाह रह गए, वो थी एस्कटोलॉजी। एस्कटोलॉजी का मतलब होता है द मेटाफिजिक्स ऑफ द मेटाफिजिक्स, माबादुल तबियात की माबादुल तबियात। इसकी एक हदीस आपको दिया
किया करता हूँ। एक सहाबी जा रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं कहता हूँ आप अपने सीने पे हाथ रख के बताएं, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल हो ही नहीं सकता। कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया क्या है? 3 लफ्ज है, इसका जवाब कोई देकर बताए कि ये दुनिया क्या है। मेरे नबी ने इसका जवाब एक लफ्ज में दिया। जो ही वो पलटा, या रसूल अल्लाह ये दुनिया क्या है? कहा ख्वाब। खत्म, दैट्स इट, ये ख्वाब है, ख्वाब है। अल्लाह के उस रसूल के उस सहाबी को ये बात जिस तरह मुझे नहीं समझ आई, उनको भी नहीं समझ आई, लेकिन उनका अखलाक था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा पसीना मेरे जिस्म से टपक रहा है, ये जहाद का खून जो मेरी तलवार पे ये अभी लगा है, मैं अपना साया जमीन पर देख रहा हूँ, आपके जिस्म की हरारत में महसूस कर रहा हूँ, ये सब ख्वाब है। उसने ये नहीं कहा ये ख्वाब नहीं है, ये सब ख्वाब है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हकीकत क्या होगी? मेरे नबी ने कहा हकीकत तब होगी जब तुम कब्र में पहली रात गुजारोगे, और जब इशा की नमाज हो जाएगी और तुम लोगों के जाने के 40 कदम सुन लोगे, तो अल्लाह तुम्हारी आंखों को खोल देगा। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कितना फहम है उन लोगों में जो मुकद्दर की बहस करना चाहते हैं, जो प्री डेस्टिनी की बहस करना चाहते हैं, जो लफ्जों के तकरार की बहस करना चाहते हैं, जो इस फलसफे को समझ सकें कि कब्र के अंदर हकीकत का इर्तका है, और मैं और आप इस वक्त जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हालत ख्वाब में है। कोई मजहब इस कायनात में फलसफे और माँ बादू तबियात के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। मुश्किल यह है कि हर शख्स केले वाले से लेके महल में रहने वाले तक इस पे सवाल उठा सकता है, लेकिन अपनी तालीम की काबिलियत को नहीं बढ़ाता। अच्छा सर, मिसाल के तौर पे इस दौर में मेरे जैसा कोई शख्स जो जिसका कोई सिलसिला नहीं है, मैं अगर सूफी बनना चाहूं, मैं चाहूं कि मैं सूफी बन जाऊं, तो क्या मेरे जैसा आम शख्स सूफी बन सकता है? और मुझे अगर मैं बन सकता हूं, तो क्या इस्लाम को समझने के लिए सूफी बनना जरूरी है? और और तसव्वुफ को मैं अपने अंदर कैसे ला सकता हूं, यानी मैं उसको अपनी जिंदगी में कैसे आजमा सकता हूं? तसव्वुफ और मैं और एक आम आदमी एज ए सूफी, इसको कैसे मिला सकते हैं सर आप? देखिए, मैं ईमानदारी से आपको बात कहता हूँ, जब मैं 8वीं क्लास में स्कूल में था, तो तब से लेके आज तक, आप मैं बुढ़ापे की उम्र में हूँ, आज तक मैं यही सवालात सुन रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसी कौम ही नहीं देखी इस कायनात में, वो ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, जो मर्जी हो, जो इन सवालों से भी आगे बढ़ सके हों। ये कमाल बात है कि हमारी अक्ल और शऊर जो है वो कितना रुका हुआ है। शऊर, मंतक, जिस बात को हम मंतक कहते हैं, ये आपको पता है अरस्तू ने पैदा की। आज भी वो 0-1 की मंतक जो है हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी उसमें एक कतरा हम शामिल नहीं कर सके। लेकिन कमाल बात है, ये सोचने की सलाहियत हमें नहीं है कि अल्लाह जो है वो इस बात पे कादिर था कि कुरान हकीम को वो किसी अच्छे से पब्लिशर, अमीर से आदमी के पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराता और दरख्तों के ऊपर उगा देता, और हम वहां से किताब उतारते और ऐसा पढ़ लेते। ऐसा अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह ने कहा मैंने इसे कल्ब मोहम्मद पे, कल्ब पे नाजिल किया। अल्लाह ने दिमाग का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अब हमें तो आज ये भी नहीं पता कि कल्ब और दिमाग में फर्क कितना है। हम इसको अपनी साइंस की टेक्नोलॉजी में जरूर कहेंगे कि सदर है, ये सेंटर है, ये थिंकिंग ब्रेन है, ये नॉन थिंकिंग है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये सब बात हमें नहीं पता कि कल्ब पे क्यों नाजिल किया। लेकिन कमाल बात है कि जो कैफियत कल्ब है, उसमें मुसलमान ही वो वाहिद हस्ती है जिसने अक्ल और दानिश इस्तेमाल करने से कसम खा ली है कि मेरे खिलाफ सारी दुनिया खड़ी हो जाए, मैंने तालीम हासिल नहीं करनी, इल्म मेरा कुछ नहीं इंशाल्लाह बिगाड़ सकता। अब सूफी जो है वो हिंदुओं में भी है, वो कमाल लोग हैं। वो जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं, क्या वो एलिवेशन नहीं करते? वो करते हैं। वो तसव्वुफ जो कैफियत कल्ब है, वो तो गारे हिरा में भी होगा, ये मेरा गुमान है। वो तो उस वक्त भी होगा जब मेरी माँ सैयदा ने कहा कि आप डरिए मत। क्या मैं ये कह सकता हूँ, जुर्रत कर सकता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घबराए हुए थे जब वही नाजिल हुई? कहा अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। क्यों जाया नहीं करेगा? क्योंकि आप गरीबों की मदद और यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं। ये तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। हमारे वो बाबों ने पता नहीं कौन से मौक्कल इजाद कर लिए इस दुनिया में। ये तो लफ्ज़ ही मौक्कल उन लोगों के पास आया जो कि सब कॉन्टिनेंट में मुलाजिम रखने वाले लोग थे। तो हमने जिन्नात के भी मुलाजिम रख दिए और मौक्कल रख दिए और कहा कि ये उचक के लाते हैं। वो बातें पिछली उम्मतों की थी। अल्लाह ने कहा कि अगर आप ये कहें कि
मुअत्तिल जो है वो कलाम को उचक लेते हैं, तो कुरान को भी उचका होगा उन्होंने, नाउज़ बिल्लाह। ये तसव्वुफ का सारा पैराडाइम जो है ये सिर्फ एक चीज पे है, अगर आपने अल्लाह को अपनी तरजीह बना ली तो आप सूफी हैं। फिर कैफियत कल्ब पे तारी होगी, और ये तजर्बा करने के लिए पहले अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज को सेटल किए बगैर, स्कूल जाए बगैर, केमिस्ट्री फिजिक्स किए बगैर कोविड-19 पे कमेंट करना जहालत है। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। सर हमारा अल्लाह ताला पे बगैर देखे ईमान, उसके बाद तमाम फिर कुरान पाक में जो अहकामात है उस पे ईमान, यानी हम लोग ईमान के इतने मजबूत हैं, इसके बावजूद फिर हमारा मरने पे ईमान और मरने के बाद जो हमारी जजा और सजा का अमल है उस पे भी ईमान है, यानी हम ईमान के इतने मजबूत लोग हैं। मगर सर वो कौन सा ऐसा जज्बा है, वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि इतने मजबूत ईमान के साथ जब मैं गुनाह करने जा रहा होता हूं तो मेरे पे वो जज्बा गालिब आ जाता है और मैं ये भूल जाता हूं कि मैंने मरना है और मुझे इस बात की सजा मिलेगी, और मैं उस गुनाह का मुर्तकिब हो जाता हूं। वो कौन सा ऐसा जज्बा है जो मेरे इतने भारी ईमान के ऊपर हावी आ जाता है सर? मैं बड़ी ही माफी मांग के ये बात वादा आपसे कह रहा हूँ, और मैं बहुत ही एहतियात के साथ लफ्जों का चुनाव करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में आपने जितने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ये मुनाफिकाना है। हम में से किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि रब ताला है। हम में से किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि हमने मरना है। पाकिस्तान के अंदर जब मेरे कप्तान ने 4 दिन सिर्फ लूज किया है लॉकडाउन, तो मैं तो इस बात पे रो रहा था कि लोग भूख से मर रहे हैं। उन 4 दिनों में जो गरीब लोगों के बाजार थे, उन बाजारों में मिसाल के तौर पे सदर, आरे बाजार, कैंट बोर्ड के बाजार, छोटे छोटे बाजार जहां पे के अमीर लोग जाते भी नहीं है, मैं मॉल्स की बात नहीं कर रहा, उन लोगों ने 4 दिनों में सिर्फ 4 शहरों में 34 बिलियन की शॉपिंग की। वाहिद ज़कात जिसने इस कायनात में नहीं दी वो मेरा मोहम्मद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़कात नहीं दी क्योंकि माल को कभी रखा नहीं। ये वो यकीन होता है जो रब की जात पर होता है। ये बाकी तो सब फाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये हमारे कल्चर की डोमेन्स हैं, यकीन की डोमेन्स नहीं है। जिस दिन यकीन होगा उस दिन ना हम अपना मुल्क छोड़ेंगे और ना हमारे घरों में माल होगा। अच्छा हजरत, हमारे एज अ मुस्लिम हमारे ईमान के दर्जात हैं। सबसे बड़े लेवल का दर्जा यह है कि मैं कोई बुराई देखूं तो हाथ से रोकूं। अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी गुनाह को देख रहा हूं और मैं उसको हाथ से रोकने की कोशिश करूंगा तो इससे तो इंतशार फैलेगा। कोई शराबी है या कोई इस किस्म का कोई काम कर रहा है, मैं हाथ से रोकूंगा तो उससे इंतशार फैलेगा। अच्छा, अब दूसरा दर्जा यह है कि मैं मुंह से बोलूं। अगर मैं उसको मुंह से कहूंगा भाई ये काम ना करो, वो हो सकता है मुझे कहे कि भाई तुम कौन हो। अब तीसरा दर्जा ये है कि मैं दिल में उसको बुरा समझ लूं। अब तीसरा दर्जे पे तो मैं आ गया हूं, मगर इससे माशरे की भलाई या माशरे को सुधार में कैसे मैं अपना अमल अदा कर सकता हूं? तो ये जो 3 दर्जात है ईमान के, जिस पे हम एज अ मुस्लिम जो है वो बिलीव करते हैं, स्टैंड करते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए मेरी समझ के लिए सर। बात इसमें पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ईमान के अपने तकाजे होते हैं, और ईमान का सबसे पहला और आखिरी तकाजा यह है कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं या नबी पाक फरमाते हैं वही करना होता है। अब तबलीग करने के लिए अल्लाह के और अल्लाह के रसूल ने क्राइटेरिया क्या बनाया है कि जिसके पास फहम, इल्म, अदराक है वो तबलीग करे। केले वाला तो तबलीग का उसका जिम्मा नहीं है, रेहड़ी वाले का तो, ड्राइवर का तो ये वसफ नहीं है कि वो लोगों को ये डिसाइड करे कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यही एक बहुत बड़ी गलत फहमी ने जिस चीज को जन्म दिया है वो ये कि शायद हमने ठेका लिया हुआ है इस बात का कि हम बरतानिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में सब जगह जाएंगे और हम जाके इस्लाम फैलाएंगे। इसकी एक वजह तो ये, दूसरी वजह ये कि इस तबलीग की वजह से हमने अपनी तारीख के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को हीरो वर्शिप के लिए इख्तियार कर लिया जिनका आज हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई आज पूछे कि जनाब आप रशिया क्यों गए, लोगों को मारा पीटा, आपने कहा यार टैक्स दो, पैसे दो या इस्लाम कबूल करो, तो आज अमेरिका और ये कर रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है?
تو میرے پاس اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنی ہیرو ورشپ جو ہے وہ بڑی منفی پہ رکھی ہے، اور پچھلے 400 سال سے زیادہ میں ہم نے تاریخ پہ کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور مجھے اگلے 400 سال بھی کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ اس شخص کی نیت جو ہے وہ برائی کی ہے یا نہیں؟ اللہ نے حساب تو نیتوں پر کرنا ہے۔ میں کسی شرابی کو روکتا نہیں ہوں اس لیے کہ وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں اس کو ضرور ٹوکوں گا جو شراب کو زمزم کہہ کے پیے گا۔ یہ معاملہ ایکڈیمکل اور انٹلیکچوئل ہے، اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اسلام کے اندر تبلیغی بن جائے۔ آپ نے اگر شروع کرنی ہے تبلیغ تو علم آپ کی پہلی سیڑھی ہے، اور دوسری سیڑھی آپ کی تزکیہ نفس۔ اور میرے نبی نے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی 3 ایسے وقت مسلسل جس پہ روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو۔ حضرت عمر خطاب لے لیجیے، حضرت ابو بکر صدیق لے لیجیے، آپ کو لوگ نظر نہیں آتے۔ امام علی کرم اللہ کا دور سب سے کامیاب کیوں ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ فتنہ امام کے دور میں ہے، اس لیے کہ اس کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ یہ اخلاقی پہلو ہیں۔ اللہ کے ولیوں، ان باتوں کو مسلمانوں کو مجھے سب سے پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تبلیغ یہ جو روڑیاں بانٹنے والا کام نہیں ہے، تبلیغ اس کا کام ہے جو دین کو سمجھتا اور فہم کرتا ہے اور اخلاق کی ان پوری اور علم کی ان پوری قدروں پر اترتا ہے، پھر تو وہ کسی کے اوپر اعتراض کرتا اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ جو ہاتھ پکڑنے والی بات اور روکنے والی بات، یقین کیجئے میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ڈینمارک میں سینکڑوں لوگوں کو، 100 200 300 400 لوگ ہوں گے، قوالی سنتے ہوئے اسلام قبول کرنا دیکھ لیا کہ وہ قوالی سن کے امجد صابری کی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ رو رو کے پاگل ہو گئے کہ ان کو کک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے حرام ہے۔ پہلے آپ اپنے فیصلے تو کر لیں، پھر لوگوں کے اندر جائیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ جب آپ تیار ہی نہیں ہیں تو درجے 3 ہو یا 30 ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ نے 3 درجے لگانے بھی ہیں تو میری التماس امت مسلمہ سے یہ ہوگی کہ وہ اپنے پہ لگائیں اور اپنے گھر والوں پر لگائیں۔ اچھا سر، آج کل کے حالات میں نے روزی بھی کمانی ہے، میں نے بزنس یا جاب جو بھی میں کر رہا ہوں، میں نے اپنی جو ریلیجس پریکٹس ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، میں نے معاشرتی طور پہ بھی اپنے آپ کو ان رکھنا ہے جس میں دوست احباب ہیں، اور میں نے اپنی فیملی کو، قریبی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس میں کس طرح سے بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو معاشرتی طور پہ زیادہ ان کر لوں تو ریلیجس پریکٹس میں کم ہو جاؤں، ہو سکتا ہے ریلیجس پریکٹس میں زیادہ آ جاؤں تو کوئی میرا اور پہلو کم ہو جائے، ہو سکتا ہے بزنس میں آمدنی میں اتنا میں کھپ جاؤں کہ میں گھر والوں کو بھی بھول جاؤں اور اپنی جو میری ڈیوٹیز ہیں اسلامک ان کو بھی بھول جاؤں۔ تو ہم اس میں بیلنس کیسے رکھیں سر؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ ساری ہوائی باتیں اور ساری خیالی باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں تب ایجاد ہوئیں جب MBA جو ہے وہ ایجاد ہوا، اور اس نے بتایا کہ آپ کو ٹائم ڈسٹریبیوشن کیسے کرنا ہے، آپ کو ریلیشن شپ اسپریڈ کیسے کرنا ہے، آپ کو وہ پیرامڈ کیسے بنانی ہے سکسیس کی طرف جانے کی۔ یہ ساری کتابی باتیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ نہ مذہب سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ شعور سے ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں اگر MBA کرنے کے بعد یا ان تعلیمات کے بعد یا ٹیچرس ٹریننگ کے بعد یا اس طرح کی کاؤنسلنگس کے بعد لوگوں نے کامیاب ہونا ہوتا تو پھر بل گیٹس جو ہے وہ یہیں سے نکلا ہوتا، ملک ریاض بھی یہیں سے نکلا ہوتا، منشا بھی یہیں سے نکلا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان پچھلے 6 ہفتوں نے پوری امت مسلمہ کو اور انسانیت کو یہ بتا دیا کہ ہم جو ہمیشہ کہتے تھے کہ وقت نہیں ہے خاندان کے لیے، وقت نہیں ہے بچوں کے لیے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم اکا جھوٹ بولتے تھے۔ آج ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے بور ہو رہے ہیں اور ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں میں کھانا کیسے کھاتا ہوں، میں نہاتا کیسے ہوں، میں بیٹھتا کیسے ہوں۔ ارے آپ کی زندگی، ہماری زندگی ایک فیک ہے، فیک زندگی ہے۔ ہم تو 6 ہفتے جو ہے وہ تقوی میں، عبادت میں نہیں گزار سکے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دعائیں ضرور مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حرم شریف کو کھول دے اور وہاں جانے کا ہمیں موقع ملے۔ ارے بھائی، جو لوگ اپنے بچوں کی 6 ہفتے میں تربیت، اپنی بیوی، اپنے اب میں ایمانداری سے آپ کو بات کہتا ہوں، اللہ کے رسول کی بات پہ تو یقین مسلمانوں کو کرنا چاہیے نا۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے روزے قبول ہوئے، آپ کو نہیں پتا آپ کی نمازیں قبول ہوئی، آپ کو نہیں پتا کہ شب قدر ملی نہ ملی، آپ کو نہیں پتا۔ اس کے لیے آپ کو مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جس چیز کو اللہ کے رسول نے ٹھوک
बजा के बता दिया कि इसका सवाब और अजर पक्का है, और पक्का नहीं है सिर्फ, बहुत ज्यादा पक्का है। मिसाल के तौर पे हज कबूल होता है नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा हज कौन सा कबूल होता है, और वो हज है मकबूल हज। वो मकबूल हज कौन सा है? जब तुमने अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देख लिया। तो सहाबी मेरी तरह का जाहिल इंसान, एक मैं माज़अल्लाह मैं ये अपने गुमान से कह रहा हूँ, खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो अपने माँ को दिन में कई दफा देखता हूँ। अल्लाह के नबी ने पलट के जवाब दिया, कहा तू 70 दफा भी अपनी माँ को एक दिन में देखे, तेरे हज 70 मकबूल हज हर रोज होंगे। हमें कमाल बात है, हम जिन चीजों की तरफ बातें कर रहे हैं वो बातें हमें है ही नहीं। हम फिक्टिशियस और सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं कि मैंने कैसे करना है, कैसे। मुझे क्यों यकीन नहीं आता कि सूरह बकरा में अल्लाह ने जिन चीजों की कसम खाई है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं है, और वो कैसे बन जाती है। अल्लाह कहता है रिस्क मेरी जिम्मेदारी है, औलाद, इज्जत, जिल्लत, बीमारी से मेरी जिम्मेदारी है। आप कमाल करते हैं, तरावी पढ़ने के लिए लड़ रहे हैं, और सुबह उठने के बाद कोई ऐसी मुझे उम्मत मुसलमा का मुल्क बताए जिसने कि 50% 90% जो है वो रियायत कर दी हो रमजान के दरमियान। मैं आपको 50 गैर मुसलमान मुल्क गिना सकता हूँ जहां पे कि वो रियायत कर देते हैं मुसलमानों के लिए। हम जो बातें करते हैं वो झूठ करते हैं, वो फ्रॉड है एब्सोल्युटली। हमने फेक चीजें अडॉप्ट करके उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हम इंटेलेक्चुअल डिबेट्स आदी हो गए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा सर, मैं ऐसा क्या करूं एक आम आदमी होने के नाते कि मेरे दिल में मौत का खौफ खत्म हो। यानी मौत के खौफ खत्म होने से मुराद ये है कि मैं दुनियावी तौर पे अपने आप को इतना इन्वॉल्व ना करूं, और मुझे मेरे अंदर ये जज्बा हो कि मैंने मरना है और मैंने उसके बाद अल्लाह से मैंने मिलना है, वही मेरी दायमी जिंदगी है। वो जो एक जो खौफ हम लोगों के दिमाग में है मरने का, क्या हम उसको खत्म कर सकते हैं या वो खत्म करना चाहिए? हमने मरने के बाद वही तो एक तरीका रह गया है। मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हैं और रो रहे हैं, और सहाबी आए हैं, अब हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे जय साहब ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं? कहा मैं आने वाली उम्मत के लिए रो रहा हूँ। कहा वो इतने बदबख्त होंगे कि आप उनके लिए रो रहे हैं? कहा नहीं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए उनके लिए रो रहा हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारी तरह मुझे उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन वो मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे। कितनी शर्म की बात है कि जिस उम्मत के लिए नबी ने आंसू बहाए हैं, उसकी मुलाकात के लिए मुझे मौत तक का खौफ आ रहा है कि मैं उससे कहीं मिल ना लूं। अरे भाई, कब्र में जाके तो मैंने नबी पाक की जियारत करनी है, नबी ने आना है और मेरी बख्शिश का इंतजाम होना है। आपको इस हदीस की, ये मैं बात किसी फिरके की वजह से नहीं कह रहा, इस हदीस के रावी हजरत इमाम अली का खुतबा है पूरा, जिसमें आपने कहा कि तुम्हें ये चीजें जो है ये इनमें से गुजर के कब्र तक पहुंच पड़ेगा। ये बड़ी लंबी 17 सफ़े की हदीस है। बुनियादी तौर पे ना मुझे अपने नबी पे यकीन है, ना अल्लाह पे, ना उनकी उस मुलाकात पे जो उन्होंने मेरे साथ कब्र में करनी है। सर आखिर में अपने सुनने वालों को कोई ऐसी तस्बीह बताएं जो हमें हमारे रिस्क में, हम आम हालात में, स्पेशली जो कोविड रिजीम में, इधर यूएई में लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे तकरीबन 60,000 से ऊपर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं या जो ओवरस्टेज हैं, और वो मुंतजिर हैं फ्लाइट्स खुलने की पाकिस्तान जाने के लिए। जो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे आमदनी के जराए जो है या तो मौखर हो चुके हैं या कम हुए हैं। तो कोई ऐसी तस्बीह आप हमें प्लीज बताइए जो हम आम हालात में बगैर वजू के भी हम आम हालात में जिंदगी में उसको इंटरवीन कर लें और वो करते रहें नमाज के साथ साथ। फाद देखिए, जो वुजू है ना, ये है सिर्फ उन इबादत के लिए जो कि आपके ऊपर फर्ज की गई है। नमाज वुजू के बगैर नहीं हो सकती। रोजा जो है वो नापाकी की हालत में आप रख तो सकते हैं, लेकिन नापाकी की हालत उसमें कायम नहीं कर सकते। नापाक आप रोजे के दरमियान नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए कभी वुजू का तज़किरा किया ही नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे याद करो
कैसे याद करो? उठते बैठते लेटते और करवटों के बल। और करवट का बल आपका कौन सा साथी है? आपका स्पाउस है। अल्लाह ने कोई पाबंदी जिक्र पे लगाई नहीं है, ये तो बापों ने और मेरे जैसे नलायक लोगों ने लगा दी कि इसको यूं पढ़ो, इसको यूं पढ़ो, इसको सुबह, इसको शाम, इसके बाद। इसका जिक्र अल्लाह ताला के यहाँ नहीं मिलता कि इसको कैसे पाक करना है, कैसे नापाक करना है। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्तगफार करने को। ये रिस्क को बढ़ाता है, ये रिस्क को बढ़ाता है। अस्तगफार कीजिए, और अस्तगफार करने का ये तरीका है कि आप दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। अगर आज आपको इल्म हो गया है कि मेरे पास माल की ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मुझे ज़कात देनी चाहिए, मुझे ज़कात से बढ़ के देना चाहिए, मुझे उशर भी देना चाहिए, मुझे सब कुछ, तो उसके बाद अगर मैं ना करूं तो ये अब तौबा नहीं हो सकती, ये कुछ और भी हो सकता है। दूसरी जो तस्बीह मेरे ख्याल में मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हजरत अबू हुरैरा को आपने दी। जब वो बस थे तो आपने फरमाया क्या पढ़ रहे हो? कहा ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने फरमाया इसको पढ़ा करो, इससे 99 बीमारियां दूर होती हैं, और सबसे कम जो बीमारी है वो गम है, यानी कि डिप्रेशन है। ये दोनों जिक्र जो है अपनी जिंदगी में कायम कीजिए और अल्लाह पे तकवा कीजिए। हजरत, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने मसरूफ टाइम के बावजूद हमें टाइम दिया, हमें इज्जत दी, और यकीनन आपकी ये तमाम बातें हमारे ग्रुप के जो जो लोग भी सुनेंगे वो उससे मुस्तफीद होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलामत रहिए। सलामत। जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है आपको आज जनाब सैयद बिलाल कुतुब साहब का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। नाजरीन, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लिमिटेड ज़राए हमारे पास मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम तरतीब दें। इस सिलसिले में कभी कभार एडिटिंग के हवाले से, वॉइस क्वालिटी के हवाले से, पिक्चर क्वालिटी के हवाले से कोई कोताही हो जाती है, जिसके लिए हम माजरत ख़्वाह। आप इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अपनी जानिब से PID के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन्स और मॉडरेटर्स की जानिब से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक कहता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आने वाली ईद हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और हम आने वाली ईद अपने रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाएं। इंशाअल्लाह टुगेदर वी कैन एंड वी विल फाइट बैक। अगले हफ्ते एक नए स्टार के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम का अख्ताम हमेशा की तरह उसी दुआ के साथ कि या मेरे अल्लाह मेरे पाक वतन को ता क़यामत कायम दाइम शाद आबाद रख। अल्लाह हाफिज़। PID जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।